In the last lecture, we started with the there are two types of the cell, electrolytic cell and galvanic cell. In electrolytic cell, what we do the electrolysis and we force the reactions to occur by passing direct current from the external source into the solution. And we have seen that here in electrolytic cell, we convert electrical energy into chemical energy. In electrolytic cell, we convert electrical energy into chemical energy, correct? And then you have seen the second type of the cell, galvanic cell. In galvanic cell, the cell produces cell converts the chemical energy into what? Electricity. So in galvanic cell, chemical energy is converted into what? Electrical energy. Then we have also seen that in electrolytic cell, anode is positive and cathode is negative, whereas in galvanic cell, anode is negative and cathode is positive. And in the last lecture, we have done with electrolysis of molten sodium chloride. What is molten sodium chloride? Molten means in the melted form, but not by adding water. Matlab, sodium chloride will dissolve. Sodium chloride is in the liquid state, but without water, correct? And then you have done the electrolysis experiment. Two electrodes are dipped into the solution, having sodium chloride as the electrolyte. Sodium chloride give two ions, Na plus and Cl minus. Cl minus will go towards the anode and will form the chlorine, and Na plus will go towards the cathode and will form the sodium. So we have seen that कि अगर हम लोगों ने molten sodium chloride अगर use कर दिया, then at anode we get chlorine and at cathode we get sodium metal. So this part we have seen in the last lecture. Okay. Now today again we are doing the electrolysis, but we are doing the electrolysis of aqueous sodium chloride. So today I'll start here. That is today we'll start with electrolysis of aqueous sodium chloride. अगर हमारे पास aqueous, what is the meaning of aqueous here? Aqueous means what? Sodium chloride is dissolved in water. Aqueous का मतलब क्या होगा? कि sodium chloride is dissolved in water, liquid form में. तो अभी यहाँ पे कैसे experiment होगा? Again, see here we'll have the same one beaker, and in the beaker we have taken here aqueous sodium chloride. We have taken here aqueous, the sodium chloride dissolved in water, and this will act as a electrolyte. ये जो हमारा सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड क्या काम करेगा? That sodium chloride will act as a electrolyte. Okay, and then we are having two electrode here. Electrode may be made up of carbon, graphite. One electrode will act as the anode. They are made up of carbon. Carbon matlab graphite. Anode is positive. Other one is also made up of carbon. It is acting as a cathode and it is negative. So we are having two carbon electrode. One is acting as the anode, other one is acting as a cathode, and then they are connected to direct source of the battery, DC supply. This is connected to the positive of the battery, and this is connected to the negative of the battery. This is positive and this is negative, connected to battery, DC power source. And then here sodium chloride dissolved in water. So which ions we are having here? Sodium chloride dissolved in the water means we are having which ions over here? Na plus, Cl minus. And since it dissolved in water, water also produces the ion. Which ions what will produce over here? H plus
and OH minus. So that is now in the solution total how many ions are there? 4 ions are there. 2 cation Na plus and H plus. 2 anion Cl minus and OH minus. So in the solution there are 2 cation and 2 anion. देखो जब हम लोगों ने यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया था, मोल्टन सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम क्लोराइड इन द मेल्टेड फॉर्म, लेकिन हमारे पास 2 ही आयन थे, Na प्लस Cl माइनस. Cl माइनस चला जाएगा एनोड के पास, Na प्लस चला जाएगा कैथोड के पास. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हमारे पास सॉल्यूशन में 4 आयन्स है, 2 कैटायन और 2 एनायन. ये दूसरे आयन्स कैसे मिले? बिकॉज सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, एंड वी नो दैट वाटर इज ऑल्सो वीक इलेक्ट्रोलाइट. मतलब सोडियम क्लोराइड when dissolved in water will produce which ion? Na plus and Cl minus. Along with this, water is also dissociate to give which ion? H plus and OH minus. That means in the solution we are having 2 cation and we are having here 2 anion. 2 cation and 2 anion. Correct? Now here the first one, we'll write down the reduction. Now we know that Na plus and H plus, because they are carrying positive charge, they are carrying positive charge, so they will migrate toward which electrode? Negative electrode. Negative means they will go toward which electrode? Cathode. So Na plus and H plus will migrate towards the cathode. Why cathode? Because cathode is negatively charged, and so therefore I will write here, therefore we'll write down here reduction half reaction at cathode. We'll write here reduction half reaction at cathode. मतलब कैथोड पे हमारा कौन सा रिएक्शन? रिडक्शन. लेकिन अभी क्या हो रहा है, कैथोड के पास 2 आयन्स माइग्रेट हो रहे हैं. कौन से 2 आयन माइग्रेट हो रहे हैं? Na प्लस और H प्लस. तो अगर Na प्लस माइग्रेट होगा तो Na प्लस क्या रहेगा? Na प्लस रिडक्शन मतलब इट विल एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Na प्लस विल बिकम Na. मतलब सोडियम का चार्ज क्या होगा? डिक्रीज होगा. सोडियम विल अंडरगो विच रिएक्शन? रिडक्शन. तो Na प्लस विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Na. देखो बैलेंस करो, Na1 चार्ज बैलेंस करो. जिस साइड में इलेक्ट्रॉन नहीं है वहां पे चार्ज कितना आ रहा है? 0. तो यहाँ पे देखो +1 -1, ये हमारा रिडक्शन रिएक्शन. और ये रिएक्शन के लिए स्टैंड 0 का मतलब स्टैंडर्ड, E का मतलब पोटेंशियल. स्टैंडर्ड पोटेंशियल इज इक्वल टू -2.71 वोल्ट. मतलब अगर मुझे रिएक्शन यहाँ पे होना है तो उसके लिए कितना पोटेंशियल लगेगा? एक वैल्यू कैसे आएगा हम लोग आगे वाले लेक्चर में देखेंगे. मतलब आपको 3-4 लेक्चर के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन ये पोटेंशियल है. स्टैंडर्ड ई मतलब पोटेंशियल. इस रिएक्शन का वोल्टेज मतलब अगर ये रिएक्शन होना है तो उसमें कितना वोल्टेज लगेगा? -2.71 Na प्लस. ना दूसरा आयंस कौन सा? यहाँ पे H प्लस है. और लेकिन H प्लस किससे फॉर्म हुआ है? वाटर से. तो हियर आई राइट वाटर विल अंडरगो रिडक्शन, मतलब वाटर विल गेन इलेक्ट्रॉन. और जब वाटर का रिडक्शन होता है तो वाटर का रिडक्शन होने के बाद हमें क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा, प्लस we'll get which ion? OH minus. Always remember, see, कैथोड के पास कौन जा रहा है? H प्लस जा रहा है, लेकिन H प्लस हमें कहां से मिल रहा है? वाटर से. तो अगर हमारा वाटर का रिडक्शन, ये लर्न करना है तुम्हें इक्वेशन कि इफ वाटर अंडरगोज रिडक्शन मतलब वाटर विल एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, और वाटर का जब रिडक्शन होगा तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हाइड्रोजन एंड OH माइनस. हाइड्रोजन एंड OH माइनस. ये OH कैसे है मैं इक्वेशन बाद में तुम्हें बता दूंगा. OH माइनस. अब इसको बैलेंस करो पहले. देखो यहाँ पे H2 है और यहाँ पे H2 और यहाँ पे H1 है. करेक्ट. तो हाउ विल यू बैलेंस द इक्वेशन? तो काम कर दो, मैं यहाँ पे इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता. 2. सो हाउ मेनी H वी गॉट? 2 2s are 4. 2 2s are 4H. यहाँ पे ऑलरेडी H2 है, तो हियर आई मल्टीप्लाई बाय 2. देन आई गॉट 2O एंड हियर 2O. इक्वेशन इज बैलेंस. अभी चार्ज बैलेंस करो.
जिस साइड में इलेक्ट्रॉन है वहां पे बाद में देखने का, जिधर इलेक्ट्रॉन है वहां पे, यहाँ पे 0 चार्ज है और यहाँ पे OH-1, लेकिन 2 है तो -2 है। तो राइट साइड में हमारा चार्ज कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। तो लेफ्ट साइड में भी चार्ज कितना आना चाहिए, -2 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे तो 0 है तो आई राइट हियर 2, -2। ओके, अभी इक्वेशन बैलेंस हुआ। और इस रिएक्शन का जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है विच इज माइनस 0.83 वोल्ट, इस रिएक्शन का पोटेंशियल कितना है देखो, -0.83 वोल्ट। तो अभी देखो कैथोड के पास कौन चला जा रहा है, Na+ भी जा रहा है और वाटर भी जा रहा है। एक्चुअली वाटर मतलब वाटर का एक्चुअली कौन सा आयन जा रहा है, H+ जा रहा है। लेकिन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा, जिसका पोटेंशियल हायर है। तो सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -2.71, और वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना दिया हुआ है, -0.83। एंड आउट ऑफ दिस टू पोटेंशियल विच पोटेंशियल इज हायर, -0.83, ये माइनस नंबर है, -0.83 इज हायर। सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर, द मतलब वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल हायर है as compared to the potential of the sodium, and therefore at cathode क्या होगा हमें, water will undergo reduction and we get which gas, hydrogen gas। ओके, तो ये हमारा कैथोड का रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा है, कैथोड के लिए दोनों आयन के बीच में कंपटीशन है। Na+ को भी कैथोड के पास जाना है, H+ को भी कैथोड के पास जाना है, लेकिन दोनों आयन एक साथ नहीं जा सकते, दोनों नहीं, दोनों में से कोई एक ही जाएगा। इसीलिए फिर हमने दोनों का हाफ रिएक्शन लिखा, दोनों का यहाँ पे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखा। एंड किसका वैल्यू हायर है, वाटर का वैल्यू हायर है। तो आउट ऑफ द टू हु विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, वाटर, एंड वाटर विल अंडरगो रिडक्शन। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, एट कैथोड हमें कैथोड के ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। एट कैथोड वी विल गेट हियर हाइड्रोजन गैस। Okay, at cathode we will get the hydrogen gas. Now we'll write down similarly, we'll write down oxidation half reaction at anode। oxidation half reaction at anode मतलब एनोड का रिएक्शन देखो अभी क्या होगा एनोड पे। तो अभी देखो यहाँ पे Cl- and OH-, they are carrying negative charge, and because they are carrying negative charge they'll go towards each electrode, anode। So negatively charged ions they will go towards the anode। तो पहले हम दोनों का एनोड रिएक्शन लिख देंगे। तो ये एनोड रिएक्शन देखो, Cl- loses 1 electron to form Cl atom। बाद में दूसरा Cl- और एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो और एक Cl मिलेगा, और दो Cl साथ में कंबाइन होके क्या फॉर्म करेंगे, Cl2। देखो हम लास्ट टाइम रिएक्शन देखा था, Cl फर्स्ट Cl- will lose 1 इलेक्ट्रॉन और Cl मिलेगा। सेकेंड Cl- भी एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Cl मिलेगा, और दो Cl साथ में कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा। क्या मिलेगा, Cl2। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कि 1 Cl- will lose 1 इलेक्ट्रॉन और मिलेगा Cl एटम। दूसरा Cl- भी दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो हम यहाँ पे क्या मिलेंगे, 2 Cl एटम, और 2 Cl एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या मिलेगा, Cl2। ये हमारा क्लोरीन गैस है। मतलब एनोड पे अगर क्लोरीन चला जाएगा तो हमें Cl- आयन अगर चले जाएंगे तो क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। और इसके लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये 0 का मतलब होता है स्टैंडर्ड, OXI का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये रिएक्शन हमारा ऑक्सीडेशन है, और E का मतलब होता है पोटेंशियल। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू -1.36 वोल्ट। -1.36 मतलब अगर ये रिएक्शन अगर होना है तो उसके लिए कितना पोटेंशियल चाहिए, -1.36 वोल्ट। अभी दूसरा, और कौन जाएगा एनोड के पास, OH- चला जाएगा। OH- एनोड के पास चला जाएगा, लेकिन OH- कहां से मिला है, वाटर से। OH- कहां से मिला है, वाटर से। तो वाटर अगर एनोड के पास चला जाएगा तो वाटर का एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अभी हम यहाँ पे वाटर का ऑक्सीडेशन लिख रहे हैं। वाटर का ऑक्सीडेशन कैसे आएगा, देखो H2O ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिलेगा O2, इसमें लर्न करना है O2 प्लस मिलेगा H प्लस O2 H प्लस और ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो वाटर का ये ऑक्सीजन, ये तुम्हें दो इक्वेशन लर्न करने पड़ेंगे। एक्चुअली इक्वेशन मतलब हम लोग मल्टीपल स्टेप में लेके भी कैसे आएंगे मैं लास्ट में बता दूंगा, लेकिन अगर ऐसा लर्न करो तो इजी रहेगा। वाटर विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ओके। और वाटर से ऑक्सीडेशन में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है, O2 मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगा, और प्लस क्या मिलेगा, H प्लस मिलेगा। अब इसको बैलेंस करो पहले, यहाँ पे आई मल्टीप्लाई बाय 2, so 2 2s are 4H, 2 2s are 4H, 2 2s are 4H, तो यहाँ पे 4 है, 2 2s are 4H, ओके। और O कितना है देखो, O2 है। और अभी एटम बैलेंस हो गया, अभी चार्ज बैलेंस करो। चार्ज, यहाँ पे चार्ज देखो न्यूट्रल है, 0 है, यहाँ पे चार्ज 0 है, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे देखो इधर 0 है, यहाँ पे चार्ज +4, एक हाइड्रोजन का चार्ज +1 है, तो 4 हाइड्रोजन का चार्ज कितना रहेगा, +4 रहेगा, तो ये +4 है। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा -4, देखो +4 एंड -4। और इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, दैट इज -0.4 वोल्ट। देखो मतलब Cl minus will go towards the anode and will undergo oxidation. Water will also towards the anode and will undergo oxidation. लेकिन यहाँ पे दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, वाटर का। तो वाटर का अगर देखो -0.4 इज ग्रेटर देन -1.36, मतलब एनोड पे हमें क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए, करेक्ट। एनोड पे हमें क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन मिलना चाहिए। लेकिन क्या होता है इन रियलिटी, देखो यहाँ पे कितना वोल्टेज लग रहा है, -0.4 लग रहा है, लेकिन कभी कभी हमें इस वोल्टेज से भी ज्यादा वोल्टेज लगता है और उतना वोल्टेज वहां पे अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए वाटर का रिडक्शन रिएक्शन नहीं होगा, लेकिन किसका रिडक्शन होगा, सॉरी वाटर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, लेकिन किसका ऑक्सीडेशन होगा, Cl माइनस का, और हमें क्या मिलेगा, Cl2 मिलेगा। तो हियर I'll just write one sentence here. I'll write here that for oxidation of water, some additional voltage is required. Some additional voltage is required. Okay. एडिशनल वोल्टेज रिक्वायरमेंट, मतलब ये -0.4 लगेगा मतलब एक्चुअली, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे इससे भी थोड़ा ज्यादा वोल्टेज लगेगा, लेकिन उतना वोल्टेज वहां पे अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए एनोड पे वाटर विल नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, बट हु विल अंडरगो ऑक्सीडेशन देन, Cl माइनस विल अंडरगो ऑक्सीडेशन, और हमारा ये रिएक्शन होगा, मतलब एनोड पे मुझे क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। सो एट एनोड विल गेट द क्लोरीन। तो हियर इन दिस रिएक्शन देखो कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है, करेक्ट। तो ये हमारा रिएक्शन है। यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है तुम्हें कि अगर हम लोगों ने एक्वियस सोडियम क्लोराइड अगर यूज कर दिया, अगर हम लोगों ने एक्वियस सोडियम क्लोराइड अगर यूज कर दिया, तो हमारे पास 2 कैटायंस है और 2 एनायंस है। 2 कैटायन के बीच में कंपटीशन होता है कैथोड के लिए, और 2 एनायन के लिए कंपटीशन होता है एनोड के लिए, लेकिन दोनों में से कोई एक ही जा सकता है। तो इसलिए हमने पहले क्या किया, दोनों का Na का और H प्लस मतलब वाटर का रिडक्शन लिख दिया। दोनों में से किसका पोटेंशियल हायर है, वाटर का पोटेंशियल हायर है। ओके, अभी तुम लोग बोलोगे यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब कौन सा पोटेंशियल है,
यहाँ पे कुछ लिखा नहीं, मतलब कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन है। यहाँ पे भी मैंने कुछ लिखा नहीं, मतलब कौन सा पोटेंशियल रिडक्शन है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर अगर मैंने यहाँ पे E0 लिख दिया मतलब ये कौन सा पोटेंशियल रिडक्शन है, ये कौन सा पोटेंशियल रिडक्शन। लेकिन देखो मैंने ऑक्सीडेशन के लिए लिखा है EOX ऑक्सीडेशन, लेकिन ठीक है इसके बारे में बाद में स्टडी करेंगे। तो Na+ एंड वाटर बोथ आर गोइंग टुवर्ड्स द कैथोड, बट वाटर हैज अ हायर पोटेंशियल, सो एट कैथोड हमें क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। एट कैथोड क्या मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा। फिर Cl- एंड OH-, OH- कहां से मिला, वाटर से मिला। तो Cl- एंड OH- बोथ विल गो टुवर्ड्स द एनोड, दोनों को ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, लेकिन किसका पोटेंशियल हायर है, वाटर का पोटेंशियल हायर है। तो हमें एनोड के ऊपर वाटर मतलब क्या मिलना चाहिए था, O2 मिलना चाहिए था, लेकिन इससे भी ज्यादा पोटेंशियल लगता है, उतना पोटेंशियल वहां पे अवेलेबल नहीं रहता है, इसीलिए हमें एनोड पे क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। क्या मिलेगा, क्लोरीन मिलेगा। तो आई जस्ट राइट डाउन द प्रोडक्ट हियर, 1 minute. So what we have noticed here, at cathode we got silvery white metal, sorry, 1 minute. At cathode, अभी कैथोड पे हमें क्या मिल रहा है, देखो at cathode we are getting hydrogen. Okay, so cathode we are getting hydrogen gas. At anode we are getting chlorine gas. तो अभी देखो यहाँ पे देखो एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस किससे मिल जा रहा है, Cl- से, तो Cl- खत्म हो गया। ओके, कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस, मतलब वाटर से मिला, वाटर से मतलब किससे मिला, H+ से मिला। तो आउट ऑफ द 4 आयन Cl- आयन खत्म हो गए, H+ आयन भी खत्म हो गए, तो सोल्यूशन में कौन से आयन बचे, यहाँ पे बीकर में कौन से आयन बचे, Na+ है और बीकर में OH- है, एंड Na+ एंड OH- अगर कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा। Na+ एंड OH- अगर कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, NaOH मिलेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे 3 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, कैथोड पे मिल रहा है हाइड्रोजन, एनोड पे मिल रहा है क्लोरीन, और सॉल्यूशन के अंदर क्या मिलेगा, Na+ and OH- combine together to gives you what, NaOH. So there in the solution we are getting what, NaOH. So these are the product of electrolysis of aqueous sodium chloride. मतलब अगर हम लोगों ने aqueous sodium chloride अगर यूज कर दिया तो कैथोड पे मिलेगा हाइड्रोजन, एनोड पे मिलेगा क्लोरीन, करेक्ट। ओके, ये हमारा रिएक्शन है। ओके, अभी सपोज अगर किसी को इस रिएक्शन के बारे में, मतलब ये वाटर का रिडक्शन रिएक्शन है, उसके बारे में अगर डिटेल में लिखना है तो मतलब जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको मालूम करना है तो आई जस्ट राइट डाउन हियर, ये एक्स्ट्रा में आ जाएगा, एक्स्ट्रा हाउ वाटर अंडरगोज रिडक्शन। देखो वाटर, सबसे पहले वाटर क्या फॉर्म करेगा, वाटर विल फॉर्म द H+ एंड OH-। जब वाटर को डिसोसिएट करोगे तो वाटर क्या फॉर्म करेगा, H+ एंड OH-, करेक्ट। बाद में H+ विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, रिडक्शन है, रिडक्शन कहां पे होगा, कैथोड पे होगा। H+ विल गो टुवर्ड्स द कैथोड, और कैथोड पे जाने के बाद H+ क्या एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन। तो H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा, H। ऐसे 2 H, मतलब यहाँ पे 2 H साथ में आएंगे तो क्या बनेगा, H2। 2 H साथ, मतलब ऐसा लिखूंगा मैं, 1 H+ विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन और विल फॉर्म 1 H। तो 2 H+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और फॉर्म करेंगे 2 H, और 2 H कंबाइन टुगेदर टू गिव्स यू व्हाट, H2। तो अब मैं इस इक्वेशन को ऐड करूं, लेकिन ऐड करते समय देखो यहाँ पे मैं क्या यूज कर रहा हूँ, 2H+, ये यहाँ पे फॉर्म होती है। अगर मैं यहाँ पे 2H+ यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे भी 2 फॉर्म हुआ होगा, तो यहाँ पे 2H2O 2H+ एंड 2OH-।
एक मिनट स्टूडेंट, मैं इसके बारे में बाद में, एक मिनट मेरा मेन रिएक्शन रहेगा, एक मिनट, 1 मिनट, आई जस्ट कैंसल दिस पार्ट, ये लास्ट में लेता हूँ, because I have to add the equations. So यहाँ पे देखो, ये हमारा एनोड का रिएक्शन है। एनोड का रिएक्शन कौन सा एनोड का रिएक्शन है? देखो 2Cl माइनस gives you Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा एनोड रिएक्शन। तो दिस एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा? ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और कैथोड पे कौन सा रिएक्शन हो रहा है? कैथोड पे हमारा रिएक्शन कौन सा हो रहा है? 2H2O, ये रिएक्शन हो रहा है, राइट? 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives you H2 प्लस 2OH माइनस। सी, ये हमारा रिएक्शन था कैथोड का, ये हमारा रिएक्शन था एनोड का, दोनों को ऐड करते थे। ये हमारा रिएक्शन है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ, दोनों को ऐड कर दो। ओके, ये हमारा एनोड रिएक्शन है और ये हमारा कैथोड रिएक्शन है। अभी ऐड करते समय क्या देखना है? देखो, अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन होना चाहिए। कभी भी अगर आपको एनोड और कैथोड का रिएक्शन अगर ऐड करना है, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, क्योंकि whatever number of electron are released at the anode, same number of electron should be gained at the cathode. तो एनोड पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे और कैथोड पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे, तो इलेक्ट्रॉन सेम है, तो हम लोग इनको ऐड कर सकते हैं। सो 2 इलेक्ट्रॉन विल गेट कैंसिल, और फिर क्या मिलेगा? देखो आपको यहाँ पे व्हाट इज रिमेनिंग हियर, 2H2O प्लस 2Cl माइनस, 2H2O प्लस 2Cl माइनस gives you H2 and Cl2 plus 2OH minus. Hydrogen at cathode, chlorine at anode, and which ions are in the solution? OH minus. And already I said here, the OH minus ions combines with OH minus ion combines with Na plus ions present in the solution. OH minus ion combines with the Na plus ion present in the solution to form NaOH. ओके, तो ये हमारा प्रोडक्ट है, इसके बारे में बाद में बात करूंगा, ठीक है? तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिसिस हुआ। तो हमने 2 इलेक्ट्रोलिसिस देखे, एक देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड और दूसरा देखा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस सोडियम क्लोराइड। ओके, यस, नाउ आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट स्टडी। अभी बच्चों मुझे बोलो, किसी को यहाँ पे डाउट है क्या? सर यस सर, ते प्रायोरिटी नाही कळली। प्रायोरिटी, ओके, 1 मिनिट। कोणती प्रायोरिटी? सर H2 ला घ्यायचं की Na ला, आणि H2 ला घ्यायचं की Cl ला? आता हे बघ, पहिले रिडक्शन बघ, Na प्लस पोटेंशियल किती आहे? -2.71. वॉटर पोटेंशियल किती आहे? -0.83. कोणाचं पोटेंशियल हायर आहे? वॉटरचं, करेक्ट? सो एट कैथोड वाटर विल अंडरगो रिडक्शन, मतलब एट कैथोड दिस रिएक्शन विल हैपन, ये रिएक्शन कैथोड पे होगा। एनोड पे देख, एनोड Cl माइनस लूजेस इलेक्ट्रॉन Cl2 और इसका पोटेंशियल -1.36 है, और वाटर का पोटेंशियल -0। एक्चुअली एनोड पे ये रिएक्शन होना चाहिए था, एनोड पे हमें क्या मिलना चाहिए था? ऑक्सीजन मिलना चाहिए था, क्योंकि इसका पोटेंशियल हायर है। लेकिन क्या होता है, यहाँ पे पोटेंशियल -0.4 है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इससे भी ज्यादा पोटेंशियल हमें लगता है, और उतना पोटेंशियल वहां पे अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमारा एनोड का ये रिएक्शन हुआ है। एक्चुअली इसके बारे में उन्होंने ज्यादा हमारे बुक में नहीं दिया है, मतलब 12th के कहाँ पे भी बुक में नहीं दिया है। और वो जो कंसेप्ट है उसे हम लोग बोलते हैं ओवर वोल्टेज, वहां पे जो कंसेप्ट है उसे बोलते हैं हम लोग ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज का मतलब क्या? यहाँ पे वोल्टेज लिखा है 0.4, लेकिन इससे भी ज्यादा वोल्टेज लगेगा,
और उतना वोल्टेज वहां पे अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हमें O2 नहीं मिलता है, बल्कि हमें क्या मिलता है, क्लोरीन मिल जाता है। आ रहा है समझ में? हो सर। और एक्चुअली ये वैल्यूज के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, हमारे पास ये पूरा कंसेप्ट ही इसके ऊपर है। ये खाली अभी फर्स्ट टाइम यहाँ पे वैल्यूज आ रहे हैं, तो ज्यादा टेंशन मत लो। नेक्स्ट टाइम हम लोग मतलब ऑफकोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर इनके बारे में हमें डिटेल में स्टडी करना है। ओके, और किसी को डाउट है? यस। Okay, no, then I'll proceed further. Yes, now I'm going to the next heading. The next heading is quantitative aspects of electrolysis. क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अभी क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस मतलब क्या होता है वो हमें देखना है। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव का मतलब देखो, फॉर एग्जांपल देखो, हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद कैथोड पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन मिल रहा है, एनोड पे क्या मिल रहा है, क्लोरीन मिल रहा है। तो ये जो अमाउंट हमें यहाँ पे मिल रही है, ये जो अमाउंट हमें मिल रहा है, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करने का, मतलब कैथोड पे हाइड्रोजन मिला, लेकिन कितना हाइड्रोजन मिला, एनोड पे क्लोरीन मिला, कितना क्लोरीन मिला, वो कैसे कैलकुलेट करना है, उसके बारे में स्टडी करना है। दैट्स व्हाई आई हैव गिवन हेडिंग हियर एज व्हाट, क्वांटिटेटिव। मतलब हमें फाइंड आउट करना है क्वांटिटी, what is the amount of the substance formed at the cathode, correct? So we have to calculate what हमें क्या करना है। यहाँ पे दो पार्ट है, ए एंड बी। तो आज हम लोग ए पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। द मास ऑफ reactant consumed or the mass of product formed at an electrode during इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, मतलब हम लोग जब रिएक्शन करेंगे तो कैथोड पे हमें कोई ना कोई सब्सटेंस मिल जाएगा, हमें एनोड पे कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो कैथोड पे जो मिल रहा है उसका अमाउंट कितना मिल रहा है, कितना ग्राम मिल रहा है, कितना किलोग्राम मिल रहा है। तो हियर मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम और द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म एट एन इलेक्ट्रोड, मतलब इलेक्ट्रोड के हम ऊपर जो हमें अमाउंट मिल रहा है वो कैसे कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन करने के लिए सबसे पहले वाला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप, calculation of quantity of electricity passed, calculation of quantity of electricity passed। मतलब कैसे, देखो जब हम सर्किट कनेक्ट करेंगे तो पहले जैसे मैं सर्किट ऑन करूंगा तो यहाँ से मैं कितना इलेक्ट्रिसिटी अंदर पास कर रहा हूँ। जब सर्किट ऑन करने के बाद अंदर कितना इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो कैलकुलेट करना है पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास इज इक्वल टू, क्या करना है, हमें फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला करना है, देखो Q,
Q, Q electricity, Q is the coulomb. Electricity किसमें measure करो? coulomb में, equal to I is a current in ampere, and T is a time in seconds. इसका मतलब यहाँ पे ये अगर जो बैटरी जब हम लोग ऑन करेंगे तो हम यहाँ पे क्या पास करेंगे? करंट पास करेंगे, मे बी 1 एम्पियर 2 एम्पियर, ज्यादा हायर करंट नहीं रहेगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर रहेगा। तो करंट हम लोग यहाँ से पास करेंगे, और कितने टाइम के लिए, मतलब कितने सेकेंड्स के लिए? 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड। तो क्योंकि देखो हमें करंट किस में मेजर करना है? एम्पियर में मेजर करना है, और टाइम किस में मेजर करना है? सेकेंड्स में मेजर करना है। और प्रोडक्ट ऑफ द करंट एंड टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट? Q. Q मतलब इलेक्ट्रिसिटी. So what is Q stands for? The Q stands for quantity of electricity pass. Q stands for quantity of electricity pass. मतलब हमने कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करे, कैसे कैलकुलेट? और it is measured Q. The smaller, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो, or maybe in the physics you must be also using the word called as what? Charge. Quantity of the electricity pass or quantity of the charge pass. The smaller unit, the smaller unit of Q मतलब इलेक्ट्रिसिटी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? चार्ज. स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज क्या है हमारा? कूलम से. कूलम मतलब अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी स्मॉल अमाउंट में मेजर करना रहेगा तो यूनिट्स का यूज करोगे? कूलम. एंड द लार्जर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज is फैराडेज. मतलब अगर हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कूलम्स में मेजर करोगे, और लेकिन लार्ज क्वांटिटी में पास करोगे तो फैराडेज में. और रिलेशन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कि रिलेशन है 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम. मतलब जब हम लोग 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, एंड दिस मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू व्हाट? 1 फैराडे. इतना 1, ये रिलेशन दोनों के बीच में. मतलब कूलम इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड फैराडे इज द लार्जर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ओके, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा यहाँ पे? इस सॉल्यूशंस के अंदर हम लोग करंट पास करेंगे तो करंट किस में मेजर करोगे आप? एम्पियर में. और कितने टाइम के लिए पास करोगे? टाइम किस में मेजर करोगे? सेकेंड में. और करंट इन एम्पियर एंड टाइम इन सेकेंड, इन दोनों का जो प्रोडक्ट मिलेगा, दोनों के प्रोडक्ट को आप क्या बोलोगे? कूलम. मतलब क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे. क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलोगे. करेक्ट. एंड व्हाट इज आई और व्हाट इज स्मॉलर यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी? कूलम. द लार्जर यूनिट इज व्हाट? फैराडे. और दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? कि 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम. और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा है करंट I इन, करंट कंपल्सरी किसमें होना चाहिए? इन एम्पियर्स. प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ध्यान में रखना, करंट हैज टू बी इन एम्पियर्स एंड टाइम कंपल्सरी हैज टू बी इन, टाइम कंपल्सरी हैज टू बी इन व्हाट? सेकंड्स. ये हमारा रिक्वायरमेंट है. तो अभी हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ, हम लोगों ने सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. अभी इलेक्ट्रिसिटी पास करने में क्या होगा? देखो, सेकेंड स्टेप calculations of moles of electron passed. Calculations of moles of electron passed.
अब इसका मतलब क्या होता है वो पहले हमें मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। अभी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास मतलब क्या होगा, देखो जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम क्लोराइड विल चेंज इनटू व्हाट, Na+ एंड Cl-। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद सोडियम क्लोराइड आयन फॉर्म करेगा और आयन फॉर्म करने के बाद Cl- चला जाएगा एनोड के पास, और जब Cl- एनोड के पास चला जाएगा तो Cl विल लूज इलेक्ट्रॉन, बिकॉज एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो Cl- जब एनोड के पास चला जाएगा तो क्या लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो Cl- ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो हमें कैलकुलेट करना है। Cl- ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए वो हमें कैलकुलेट करना है, और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चले जाएंगे, बैटरी के पास, और बैटरी से कहाँ पे चले जाएंगे, कैथोड के पास, और फिर कैथोड के पास कौन जा रहा है, Na+ जा रहा है, और Na+ उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो हमें अभी कैलकुलेट करना है कि हमारे एक्सपेरिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है वो हमें कैलकुलेट करना। तो हाउ विल कैलकुलेट हियर, सी so the second क्या here, calculations of moles of electron pass. Okay, moles of electron pass. So now here you can say $96,500 coulombs. 90 standard relation है, 96,500 coulomb electricity required. 96,500 coulomb electricity required for 1 mole of electron. देखो मतलब अगर मुझे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने हैं, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितना कूलम लगेंगे, 96,500 कूलम। ओके, 1 मोल, क्योंकि क्या ऐसा क्यों, ये वैल्यू में कहां से आएगा, क्योंकि रूल है कि अगर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने, 1 मोल मतलब कितने, एवोगाड्रोस नंबर, 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर। तो अगर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगता है, 96,500 कूलम। ओके, आई जस्ट राइट ऑन सम अदर पेपर, सी हियर, अगर मुझे 1 मोल इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, 96,500 कूलम। और 96,500 कूलम मतलब कितना फैराडे, 1 फैराडे, एक स्टैंडर्ड है। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी, मतलब अगर हमारे पास 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, 1 मोल मतलब एवोगाड्रोस नंबर, एंड व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10⁻²0। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ट्रांसफर करना है, मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को अगर आपको ट्रांसफर करना है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, 96,500 कूलम, and 96,500 कूलम इज इक्वल टू हाउ मेनी फैराडेज, 1 फैराडे। ओके, तो हमने ऐसा एज्यूम किया कि हम लोग कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं, 1 मोल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 1 मोल के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी लग रहा है, 96,500 कूलम लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा 96,500 कूलम्स इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर ट्रांसफर ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग कितना इलेक्ट्रिसिटी पास करें, Q कूलम। तो अगर हमने Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, अगर हमने Q कूलम इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया तो आई राइट हियर, देयरफॉर Q कूलम ऑफ electricity will transfer how many moles of electron, will transfer how many moles of electron। तो अभी कैसा होगा, Q into 1, तो Q into 1 क्या आएगा, Q divided by 96,500, so therefore I write here, therefore moles of electron pass, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, moles of electron passed actually, or moles of, 1 minute, moles of electron
actually passed is equal to moles of electron actually passed is equal to Q upon 96500. ये हमारा सेकेंड स्टेप हुआ. ओके, ये हमारा फर्स्ट. सबसे पहले हमने सॉल्यूशन के अंदर क्या पास कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया. इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या फॉर्म हुआ? एन फॉर एग्जांपल Na प्लस एंड Cl माइनस. फिर Cl माइनस चला जाएगा एनोड के पास, फिर एनोड पे उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया. ओके, तो मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इज इक्वल टू व्हिच फॉर्मूला? Q अपॉन 96500 moles of electron. Moles of electron. Okay, ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया. नाउ आई विल गो फॉर थर्ड स्टेप. वन मिनट. ओके, अब यहाँ पे देखो, करंट पास कर दिया. करंट पास करने के बाद क्या फॉर्म हुए? Na प्लस एन Cl माइनस एन फॉर्म हो गए. Cl माइनस चला जाएगा एनोड के पास, एनोड के पास वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन बैटरी के मार्फत कहाँ पे आ जाएगा? कैथोड के पास आएगा और कैथोड में Na प्लस पे इलेक्ट्रॉन गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा. इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद हमें एनोड पे क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है. क्या मिल रहा है? क्लोरीन. तो अभी हमें देखना है क्लोरीन कितने मोल, 1 मोल 2 मोल मिलेगा. तो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा, नेक्स्ट स्टेप, third step I can say here, that is calculation of moles of product form. कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? मोल्स. हमें प्रोडक्ट मिल रहा है. कौन सा प्रोडक्ट मिल रहा है? एनोड पे मिल रहा है. मतलब मैं मोल्टन की बात कर रहा हूँ, मैं मोल्टन की बात कर रहा हूँ. एनोड पे क्या मिल रहा है? क्लोरीन मिल रहा है. कैथोड पे क्या मिल रहा है? सोडियम मिल रहा है. तो हमें कितना मोल्स मिल रहा है? मोल्स. सो व्हाट इज द फॉर्मूला हियर? द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. राइट डाउन द फॉर्मूला. मोल्स ऑफ प्रोडक्ट form is equal to, moles of the product form is equal to, second step में क्या मिला था हमें? moles of electrons actually passed, moles of electron actually pass into ये सेकेंड स्टेप से हमें मिला था. मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पास इनटू मोल रेशियो, तो अब ये मोल रेशियो क्या होता है वो हमें देखना है. ये हमारा थर्ड स्टेप है कि वी कैन. अभी थर्ड स्टेप में देखो हमारा रिएक्शन था, ये हमारा एनोड का रिएक्शन था मोल्टन का. सो यू नो Cl माइनस गो टुवर्ड द एनोड, लूज 1 इलेक्ट्रॉन. तो 2 Cl माइनस विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन. हमें क्या मिलेगा? Cl एटम कंबाइन होकर क्या मिलेगा? Cl2 मिलेगा. तो व्हाट इज एनोड रिएक्शन हियर? ये हमारा एनोड रिएक्शन. व्हाट इज एनोड रिएक्शन? राइट हियर, सपोज फॉर एग्जांपल 2 Cl minus gives you Cl2 plus 2 electron. 2 Cl minus gives you Cl2 plus 2 electron. Correct? अभी how to find out the mole ratio? Mole ratio. So what is mole ratio? Mole ratio is equal to moles of product form in the half reaction, moles of product form in the half reaction divided by moles of electron required in the half reaction. Correct? देखो ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा. मोल रेशियो
मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। देखो ये हमारा हाफ रिएक्शन है, हाफ क्यों की खाली रिडक्शन है इसलिए हाफ है। यहाँ पे मोल, मोल ऑफ द प्रोडक्ट, एक ये हमारा प्रोडक्ट है, कितने मोल मिल रहे हैं, 1 मोल मिल रहा है, तो यहाँ पे 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट, 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट, करेक्ट, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डिवाइड बाय 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 1 और मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो ये हमारा मोल रेशियो कितना आ गया यहाँ पे 1/2 है। मतलब आप कोई भी हाफ रिएक्शन लिख दो तो हाफ रिएक्शन लिखने के बाद आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोल रेशियो। सो व्हाट इज मोल रेशियो, मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म, ये हम 1 डिवाइडेड बाय व्हाट, मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल, तो इसे कैसे रीड करोगे, 2 मोल ऑफ Cl माइनस गिव्स यू 1 मोल ऑफ Cl2, इसे 1 मत रीड करो, इसे क्या रीड करोगे आप, 1 मोल ऑफ Cl2, और इसे क्या रीड करोगे, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा मोल रीड करना है, तो ये हमारा मोल रेशियो है। तो अगर मुझे मोल रेशियो मालूम रहेगा और मुझे मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कितने पास के वो मालूम रहेगा, तो आई कैन फाइंड आउट व्हाट, मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैं आई विल राइट डाउन हियर फॉर्मूला, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, अभी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या फॉर्मूला लिखा था, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए क्या लिखा था, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Q अपॉन 9650, तो आई राइट हियर Q अपॉन 96500 इनटू क्या है यहाँ पे, मोल रेशियो, तो इनटू आई राइट हियर व्हाट, मोल रेशियो, और एक Q, और Q को आप क्या लिख सकते हो, Q कैन बी ऑल्सो रिटन एज व्हाट, Q मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एंड Q कैन बी ऑल्सो रिटन एज व्हाट, I into T, so I'll write here Q can be also written as what, I into T. I is a current in ampere, T is a time in second, divided by 96500 into mole ratio, into mole ratio. तो ये हमारा थर्ड फॉर्मूला बना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, थर्ड स्टेप। मतलब यहाँ पे हमें क्लोरीन के कितने मोल्स मिले, ओके, सोडियम के कितने मोल्स मिले, मोल्स, लेकिन मोल्स के बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है मोल। अभी व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोल, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है, हम लोग नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई बोलेगा मुझे, नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास अपॉन एटॉमिक मास, या मास अपॉन एटॉमिक मास और मास अपॉन मोलर मास, ओके। तो यहाँ पे देखो मोल्स है, तो ये मोल की जगह में क्या लिखूंगा, मास अपॉन मोलर मास, mass upon molar mass, so I'll just write down moles of the product form is equal to what, mass of product, mass of the product, correct, divided by क्या आएगा यहाँ पे, molar mass of product, ठीक है, mass of the product upon molar mass of the product is equal to I into T divided by 96500 into mole ratio। लेकिन अभी मुझे खाली प्रोडक्ट का मास चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू I into T divided by 96500 into मोल रेशियो इनटू, ये मोलार मास यहाँ पे आ जाएगा, तो हियर व्हाट विल राइट हियर, मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट, मोलार मास ऑफ द, मतलब जो प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का मुझे मास कैलकुलेट करना है उस प्रोडक्ट का यहाँ पे क्या लेना है मुझे, मोलार, तो ये हमारा फोर्थ स्टेप है। मतलब फाइनली वी कैन एबल टू कैलकुलेट व्हाट इज द मास ऑफ द सब्सटेंस वी गेट एट कैथोड एंड एनोड, मतलब कैथोड और एनोड पे जो भी हमें सब्सटेंस मिल रहा है उसका अमाउंट हम लोग ग्राम या किलोग्राम में कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करोगे, कौन सा फॉर्मूला, ये लास्ट फॉर्मूला, आई मतलब करंट इन एम्पियर, टी मतलब टाइम इन सेकेंड्स, डिवाइडेड बाय 96500 इनटू मोल रेशियो। और ये मोल रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ रिएक्शन लिखना है, हाफ, कोई भी हाफ,
और हाफ रिएक्शन लिखने के बाद मोल ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो मोल रेशियो मिलेगा। और मोल रेशियो के बाद क्या लिखोगे आप, मोलार मास ऑफ द प्रोडक्ट, क्या लिखोगे, मोलार मास ऑफ द। तो हमें अगर कोई भी सब्सटेंस का कितना मास मिला अगर कैलकुलेट करना है तो कितने स्टेप्स है, 4 स्टेप्स है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, सॉल्यूशन के अंदर क्या पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे। कैसे मेजर करोगे, करंट पास करेंगे फॉर सम टाइम, और करंट अगर मालूम है, टाइम अगर मालूम है, तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा कूलम्स में। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद क्या हो गया, आयंस फॉर्म हो गए, और ions will migrate towards the opposite electron and then they will lose electron, gain electron। तो moles of electron pass मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे, तो moles of electron pass कौन से फॉर्मूला से मिलेगा, Q अपॉन 9650। और एक बार इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए फिर हमें क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। एंड मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है, I इंटू टी अपॉन 96500 इंटू मोल रेशियो। और एक बार हमें मोल्स मिल गए फिर हमें क्या निकलना है, मास। तो मोल का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन मोलार मास, यानी मास यहाँ पे रखा और मोलार मास को राइट साइड। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। लेकिन डिपेंड, कभी कभी हम लोग दे आस्क अस कि खाली इलेक्ट्रिसिटी फाइंड आउट करो, कभी कभी बोलते हैं खाली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करो, कभी बोलेंगे मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट करो, या कभी बोलेंगे मास ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन व्हाट दे हैव आस्क्ड वी हैव टू यूज द फॉर्मूला। ये हमारा मेन फॉर्मूला है, करेक्ट, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन यूज कर सकते। तो ये हमारा आज का हुआ। इसमें कोई डाउट है, इसमें और एक लॉ और एक स्टेटमेंट है लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अब इसमें कोई डाउट है क्या आपको, ओके नो डाउट, ठीक है। नाउ आई विल गो फॉर द, एक मिनट, अब वाटर का रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैसे हुआ था उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए क्या, वाटर का एक बार मैं बता देता हूँ वाटर का रिएक्शन कैसे होता है, मतलब अगर इनकेस कभी यूज करना रहेगा तो। देखो वाटर, सबसे पहले वाटर, अगर हम लोग कैथोड के बारे में लिख रहे हैं, एट कैथोड, कैथोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, रिडक्शन। वाटर जब डिसोसिएट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, H प्लस एंड OH माइनस, वाटर फॉर्म करेगा H प्लस एंड OH माइनस। कैथोड का चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास कौन जाएगा, H प्लस चला जाएगा। तो H प्लस जाने के बाद H प्लस रिडक्शन होगा, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या फॉर्म करेगा, H। तो एक H प्लस इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो H फॉर्म होगा, तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 2H फॉर्म होंगे। और ये दोनों H अगर साथ में कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, H2 फॉर्म करेंगे। तो देखो सबसे पहले कैथोड पे पहले क्या होगा, वाटर विल फॉर्म द आयन, उसमें से H प्लस चला जाएगा कैथोड के पास, H प्लस रिडक्शन होगा मतलब H प्लस इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो फॉर्म करेगा H, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2H, एंड 2H कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म H2। अभी मुझे इनको तीनों को ऐड करना है, लेकिन देखो यहाँ पे मैं कितने H प्लस यूज कर रहा हूँ, 2H प्लस, और यहाँ पे अगर मैं 2H प्लस यूज कर रहा हूँ तो मैंने H प्लस यहाँ से मिला है तो मैं इससे मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा। तो अभी देखो 2H2O क्या प्रोड्यूस कर रहा है, 2H प्लस, बराबर है। फिर 2H प्लस क्या गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, और क्या फॉर्म कर रहा है, 2H, एंड 2H कंबाइन टुगेदर टू गिव्स यू व्हाट, H2। ये बैलेंस है, अब इनको ऐड करो, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, ये 2H और ये 2H कैंसिल हो जाएगा। क्यों, ये एरो के बाद है और ये एरो के पहले, यहाँ से 2H प्लस, यहाँ से 2H प्लस कैंसिल हो जाएगा, एरो के बाद एरो के पहले। तो अभी यहाँ पे क्या बचा, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या मिल रहा है हमें, H2, और क्या मिल रहा है, OH माइनस। ये हमारा कैथोड का रिएक्शन था, ये हमारा कैथोड का रिएक्शन था। अगर आपको मालूम रहेगा, देखो हमारा कैथोड का रिएक्शन, 1 मिनट, देखो ये हमारा कैथोड का रिएक्शन था, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2 एंड OH माइनस।
2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू H2, ये हमारा कैथोड है। अगर हमने ऐड एनोड, एनोड मतलब कौन सा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन। एनोड मतलब ऑक्सीडेशन। अभी देखो वाटर क्या फॉर्म करेगा? H प्लस एंड OH माइनस। ओके, एनोड का चार्ज होता है पॉजिटिव, तो एनोड के पास कौन चला जाएगा? OH चला जाएगा। तो OH माइनस विल गो टुवर्ड्स द एनोड एंड OH माइनस विल अंडरगो व्हिच रिएक्शन? ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा? OH। OH माइनस इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या फॉर्म करेगा? OH। और ये OH बाद में फॉर्म करेगा H2, सॉरी, ये फॉर्म करेगा O2 प्लस फॉर्म करेगा H2। ये रिएक्शन सी, H2O फॉर्म करेगा H प्लस एंड OH माइनस। OH माइनस चला जाएगा एनोड के पास, वो इलेक्ट्रॉन लूज करके फॉर्म करेगा OH, और ये OH क्या फॉर्म करेगा? O2 और H2। अब इसको बैलेंस करो, मैं यहाँ पे O2 है, इधर 2 लिखता हूँ, तो O2 O2 4, 2 2 4, 4 बैलेंस हो गए। यहाँ पे मैं 4OH यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे 4OH हो गए, यहाँ पे मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और यहाँ पे मैं 4OH माइनस लिख रहा हूँ, मतलब यहाँ से मैंने 4 लिया, 4 4 4। देखो अभी बैलेंसिंग देखो, इक्वेशन कैसा आएगा? 4H2O क्या प्रोड्यूस करेगा? 4OH माइनस। 4OH माइनस 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या मिलेगा? 4OH। और ये 4OH एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और क्या फॉर्म करेंगे? O2 एंड H2। अभी इनको ऐड कर दो, सारे इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या मिलेगा ऐड करने के बाद? 4OH 4OH कैंसिल, 4OH माइनस 4OH माइनस कैंसिल, और यहाँ पे देखो 2H2, ये 2H2 और यहाँ से 2, ये 4 है, यहाँ से 2 भी कैंसिल, व्हाट इज रिमेनिंग हियर? सो 2H2O वी गिव्स यू 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो दिस इज आवर ऑक्सीडेशन, ये हमने लिखा, देखो 2H2O gives you O2 plus 4H plus 4 इलेक्ट्रॉन। बट इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल खाली लास्ट रिएक्शन लर्न कर दो। ये हमारा वाटर का कौन सा रिएक्शन है? रिडक्शन। और ये हमारा वाटर का कौन सा रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन। जैसे हमें लिख दिया वैसे आप कर सकते हो, ठीक है? अभी कुछ डाउट्स वगैरह होगा तो बोल दो।